Dear children, welcome to my YouTube channel English with Kshama. Today we shall be discussing the chapter The Tiger King from Vista's book. And without wasting time, let us begin. It is written by R. Krishnamurti, who is a great Tamil writer and popularly known as Kalki. He has authored 35 volumes of short stories, many novels, biographies, travelogue, and essays. He is known and recognized as a writer of historical and social novels. Kalki has a rare talent of taking the readers back to the point and time of history when the story is supposed to have taken place. So, without wasting time, let us move on to the next thing. Let us have an introduction to the story, dear children. The story Tiger King, the author Kalki transports the readers to the days of autocratic and eccentric kings dominating their subjects but living under the mortal fear of Britishers. Britishers से तो वो डरते थे, but then they used to be autocratic and eccentric. Autocratic and eccentric का मतलब है dear children कि वो थोड़ा सा अपने ही मन की करने वाले होते थे, dominating kind of the kings. Now, just to add an uncanny atmosphere to the story, one may find traces of supernatural in the story. थोड़ा बहुत supernatural है कि ये prediction हुआ है, astrologer ने ये कहा है, वो कहा है. That way, slight traces of supernatural. Now, overcome by arrogance, the Tiger King chooses to disprove the philosophy of the astrologer, but then the destiny proves to be all powerful, and the prediction which was made when the king was 10 days old comes to be true. Now, let us see what was the prediction and how it comes to be true. The Maharaja of Pratibandpuram, actually उसका जो नाम था, it was much hyped and titled. उसका था जिलानी जंग बहादुर और खिलेदार सेवादार. It was much hyped, but then it was shortened as the Tiger King. And the author, in a very funny way, informs the readers that the Tiger King is mortal. That means कि अगर किसी को ऐसे किंग से मिलने की इच्छा है जिसके बारे में रीडर हमें बताने, ऑथर हमें बताने जा रहा है, तो this desire cannot be fulfilled because he has left us for his final abode. उसकी डेथ हो चुकी है. The newly born prince is destined to be great warrior and heroes of heroes, but one day will have to meet its death. जैसे ही वो पैदा हुआ था तो 10 दिन बाद ये prediction किया था astrologers ने कि he would be a great warrior and a hero of heroes and champions of champion, but one day he will have to meet his end. Now, 10-day-old prince shocks everyone because the young prince addresses the astrologer clearly in his squeaky voice. 10 दिन का बेबी था वो जब वो प्रिंस, तो उसने बोला, he enunciated the words, और उसने ये क्या बोला था कि all those who are born will have to die one day, कि जिन्होंने जन्म लिया है वो मरेंगे, and ये ट्रुथ भी है. The little prince ridicules the astrologer and wants to know about the manner of his death. और उसने कहा कि मुझे तो ये पता करना है कि मैं किस मैनर में मेरी डेथ होगी. The astrologer tells him that since he is born in a bullseye and tiger and bulls are enemy, so the death would come from the tiger. The royal infant then utters, let the tigers beware. Now, his upbringing and the coronation. Upbringing में उसका ये था कि he was brought up like all princes in India. तब हमारा जो इंडिया में influence था ब्रिटिशर्स का वो बहुत ज़्यादा था. तो सभी प्रिंस उसी तरीके से rear up किए जाते थे या उनका लालन पालन किया जाता था जैसे कि हमारे टाइगर किंग का हुआ था. So he was given milk of English cow, taught by an English tutor, looked after by an English nanny, and watched English films. At the age of 20, he was crowned as the king of Pratibandpuram. Now, the astrologer reiterated his prediction. जब वो crown जंग बहादुर को एज अ किंग बनाया गया था प्रतिबंधपुरम का 20 साल का, तो उसको अपनी वो याद था जो प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने किया था व्हेन ही वाज 10 डेज ओल्ड, और वो प्रेडिक्शन क्या था दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर. तो उसने क्या किया, अपना फर्स्ट टाइगर, और उसको किंग को ये भी याद था वन कैन किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस. अपनी सेल्फ डिफेंस में कोई भी जना काउ को भी किल कर सकता है, जबकि हिंदू माइथोलॉजी में किंग को मारना, सॉरी, काउ को मारना अलाउड नहीं है. बट देन ही थॉट दैट आई मस्ट किल अ टाइगर, और उसने एक टाइगर मार के
वो डेड कैरकस को लेके गया एस्ट्रोलॉजर के पास. ही शोड द डेड बॉडी ऑफ द टाइगर टू द एस्ट्रोलॉजर इन अ वेरी एरोगेंट मैनर. बहुत ही ज्यादा एरोगेंट मैनर में वो लेके गया और उसने कहा कि सी आई हैव किल्ड द टाइगर एंड स्टिल आई एम अलाइव, आई एम सक्सीड. तो एस्ट्रोलॉजर ने ये जवाब दिया था कि द हिज हाइनेस मे किल 99 टाइगर इन द सेम मैनर बट द डेथ वुड कम फ्रॉम द 100 टाइगर. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं अपना प्रोफेशन भी छोड़ दूंगा और अपने हेयर भी शॉर्ट में कट करा लूंगा. सो एक्चुअली दैट वाज अ हिंट. वो एक अपने आप में ही सफिशिएंट हिंट था किंग को दैट इट वुड रिजल्ट इन द किंग्स डेथ. फाइन. But obviously we know that the obstinacy of the kings, the royal rulers of that time, तो किंग ने अपना टाइगर किलिंग मिशन शुरू कर दिया था. He banned the tiger killing in his state, and this was like a celebration time for the tigers. You may be asked a question, dear children, कि how it was a celebration time for the tiger, because king के अलावा कोई भी टाइगर नहीं मार सकता था. सो ऑल अदर लाइक पोचर्स या हंटर्स या ब्रिटिश ऑफिसर्स, किसी को भी टाइगर किल करने की परमिशन नहीं थी एक्सेप्ट द किंग, टाइगर किंग. तो इसीलिए इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स, क्योंकि वो घूमते रहते थे और उन्हें जब तक किंग नहीं स्पॉट करता था तब तक उनको कोई भी किल नहीं कर सकता था. और अगर कोई ऐसा करता तो डिफॉल्टर्स वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड. जो भी ऐसा करता उसकी प्रॉपर्टी और पैसा जब्त कर लिया जाता, बिकॉज इट वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द किंग. और किंग ने अपना एक मिशन बना लिया था और मेन ऑक्यूपेशन था. कभी कभी उसकी डेंजरस सिचुएशन भी उसको ऐसा नहीं है उसको मिली, बट देन ही वॉज एबल टू सक्सेसफुली फाइट द टाइगर्स. नाउ देयर वॉज अ विजिट ऑफ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, और उसने विजिट किया तो उसने रिक्वेस्ट की थी किंग से कि मुझे आप टाइगर हंट पे जाने दो, बट देन इट वाज नॉट अलाउड. ऑब्वियसली महाराजा declined to grant the permission. Even the request of getting it photographed with the tiger killed by Maharaja was rejected. तो उसने ये कहा था, और यहाँ पे थोड़ा ऑथर ने हमें ह्यूमर ऐड किया. उसने कहा है कि आपको अगर बोर हंट पे जाना है तो अलाउ कर देंगे, मॉस्किटो हंट पे जाना है तो अलाउ कर देंगे, माउस हंट पे जाना है, बट देन टाइगर हंट इज नॉट अलाउड. थोड़ा सा यहाँ पे ऑथर ने स्लाइटली ह्यूमर ऐड किया है. बट देन इट वाज नॉट अलाउड टू एनीवन टू किल द टाइगर, इवन द ब्रिटिश ऑफिसर. और ब्रिटिश ऑफिसर ने फर्दर ये रिक्वेस्ट की थी कि उसकी डेड कैरकस के साथ फोटोग्राफ करने का इजाजत दे दी. उसने वो भी मना कर दी, बिकॉज देन अदर ऑफिसर्स वुड हैव रिक्वेस्टेड लेटर ऑन. उन्हें लगता कि इसने फोटोग्राफ क्लिक करवाई है तो हो सकता है इसने किल भी किया हो. सो दे ऑल वांटेड कि दे वुड हैव रिक्वेस्टेड फर्दर टू द टाइगर किंग टू किल द टाइगर. तो उसने उसको फोटोग्राफ तक के लिए मना कर दिया था. Now, since he refused the British officer to kill a tiger and not even he refused for even taking a photograph, so now he stood in a danger of losing his throne. अब वो डेंजर में था और उसके दिमाग में डायलेमा था. उसने सोचा अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने आई हैव सिंपली डिस्प्लीज्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर. और ब्रिटिश ऑफिसर को डिस्प्लीज करने का मतलब था कि अपने हाथ से स्टेट की ओनरशिप को भी खो देना. ऐसा हो सकता था. तो उसने क्या किया, ही थॉट दैट ही हैड डेलिबरेशंस विद हिज दीवान. उसने अपने दीवान के साथ डिस्कशन किया एंड दे बोथ डिसाइडेड दैट दे वुड ब्राइब द ऑफिसर बाय सेंडिंग एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स. उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 50 डायमंड रिंग्स किसी ज्वेलर से लेके ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजा. एंड दे एक्सपेक्टेड दैट द वाइफ ऑफ द ऑफिसर वुड चूज 1 or 2 rings, but the greedy officer's wife kept all the 50 rings and sent thanks to the Maharaja. Maharaja had to bear the cost of the diamond rings, that was nearly 3 lakhs of rupees, but then still he was happy because he was able to retain his kingdom. Now the tiger hunt continues. After 10 years of hunting expedition, the king could kill 70 tigers in Pratibandpuram, but slowly the tiger population became extinct. Then the king decided to marry a girl and whose father's kingdom had lot many tigers.
तो यहाँ पे भी ऑथर ने थोड़ा सा हमें ह्यूमर ऐड किया है. ही डिस्कस विद हिज दीवान दैट आई वांट टू मैरी एंड व्हाइल ब्रांडिशिंग हिज गन इन द एयर. तो उसको लगा कि ये गन से शादी करना चाहता है ये वो. तो दीवान ने थोड़ा सा उसको ये कहा कि हमारे यहाँ हमारे एंसेस्टर्स ने गन से शादी करी है, स्वॉर्ड से शादी करी है, बट नन ऑफ देम हैव मैरिड अ टाइगर. तो आप ये क्या करना चाहते हो? तो उसने फाइनली सेज कि नो, आई जस्ट वांट टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम द रॉयल फैमिली whose father's kingdom had lot many tigers. उसको ऐसी लड़की मिल गई थी. And whenever he would visit his father-in-law's house, he would kill 5 or 6 tigers, and he would then feel happy. Now in इस प्रोसेस में पूरे में उसने करीब now approximately उसने 29 more tigers अपने और मार दिए थे. Now only there was a search for the 100 tiger. So total 70 प्रतिबंधपुरम में मारे थे, 29 उसने अपने फादर इन लॉ के किंगडम में. And now just to complete the tally of 100 tigers, only one tiger was left. और जो टाइगर फॉर्म्स थे सब जगह वो दे स्टार्टेड रनिंग ड्राई, क्योंकि कहीं भी टाइगर नहीं बचे थे. पर उसको एस्ट्रोलॉजर की वार्निंग याद थी दैट द डेथ वुड कम फ्रॉम द 100 टाइगर. महाराजा बहुत अपसेट था बिकॉज द टाइगर, नो वन वॉज एबल टू ट्रेस अ टाइगर. मिल ही नहीं रहा था उसको. एंड कहीं ना कहीं किसी ने कहा कि नियर बाय विलेज में है एक टाइगर. इट प्रूव टू बी डिसअपॉइंटिंग, वो वहां पे था ही नहीं. सो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन द किंग टर्मिनेट्स द सर्विस ऑफ द मेन ऑफिसर. किंग ने जो मेन ऑफिसर की सर्विसेज थी वो टर्मिनेट कर दी, और विलेजर्स को उसने पनिश कर दिया था बाय डबलिंग द लैंड टैक्स. उसने लैंड का जो टैक्स था वो डबल कर दिया था. दीवान वांस द डेंजर एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट. दीवान ने ये भी समझाया था कि अगर लोग रेस्टलेस हो गए, दे विल जॉइन द नेशनल कांग्रेस एंड दे मे गो अगेंस्ट यू. बट इसके बावजूद भी, दीवान के समझाने के बावजूद भी, उसने उनका जो लैंड का टैक्स था वो डबल कर दिया था, बिकॉज इट वॉज he was very unhappy. Now Diwan's role in the 100 tiger, killing of the 100 tiger. दीवान को ये लगा कि राजा बहुत फ्रस्ट्रेशन में है और उसकी जो एंगर है दैट इज लाइक इट इज गोइंग बियॉन्ड मेजर्स. तो उसको लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए. तो ही ब्रॉट वन ओल्ड टिमिड एंड वीक टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास. पीपल्स पार्क इज अ जू एरिया, और वहां से वो एक टेम टाइगर लेके आया जो बिल्कुल ही ओल्ड और वीक था. एंड he brought it and made it stood in front of the king in the court. राजा ने उसको एम किया और उसको जोर से उसने बुलेट चला दी. द किंग वॉज, जैसे उसने बुलेट चलाई वैसे ही वो ड्रॉप डाउन हो गया. ही क्रम्पल्ड इनटू अ हीप. वो बिल्कुल उस तरह से गिर गया. किंग वॉज वेरी इलेटेड. किंग को इतनी खुशी हुई कि लो, मेरी तो 100 की जो टैली थी वो पूरी हो गई है और अब मेरे को कोई नहीं मार सकता. और उसने स्टाफ को ये कहा कि इसका ग्रैंड प्रोसेशन निकाला जाए स्टेट में और फिर उसका एक टोम बनाया जाए. सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन कि व्हाट ही डिड आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, तो उसमें आप यही लिखोगे कि ही आस्क्ड हिज स्टाफ टू टेक द डेड carcass of the tiger in a grand procession throughout the state and then erect a tomb. और उसने ये कह के वो चला गया. बट देन जैसे ही वो गया, द फेंटेड टाइगर, इट शुक एवरीवन. इट शुक एवरीवन बिकॉज वो बुलेट के शॉट से वो डेड हुआ ही नहीं था. द हंटर्स वर dumbfounded when the lamb-like tiger wakes up. और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, लैम्ब लाइक का मतलब है डियर चिल्ड्रन कि वो बहुत ही टिमिड वीक टाइगर था. और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी स्टाफ थे, वो सारे डम्बफाउंडेड हो गए थे. बिकॉज उन्हें लगा कि अगर हमने ये किंग को रिवील कर दिया फैक्ट, तो हमें तो मतलब हम तो जान से ही हाथ धो बैठेंगे. फाइन. तो उसमें से एक मिनिस्टर ने खुद ने खड़े होके एम किया और उसने उस टाइगर को वहां पे किल कर दिया. एंड लेटर इट वॉज बरेड एंड टोम वॉज इरेक्टेड. किंग अब तक इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में था कि 100 टाइगर जो है वो उसी ने मारा है. एंड ही इज नाउ सेव. he may be a mortal man, क्योंकि अब उसको कोई मार ही नहीं सकता है, और उसने 100 टाइगर मार दिए. एंड देन द बर्थडे प्रेजेंट फॉर द 3-year-old प्रिंस. अब तक
राजा अपने मिशन में लगा हुआ था, अपनी जो उसका 100 टाइगर की टैली पूरी करनी थी उसमें लगा हुआ था, काफी साल हो गए थे. नाउ ही हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट हिज सन who will be now 3 years old और उसकी बर्थडे आ रही थी. So he diverted his attention towards his son and bought a poorly carved toy tiger from a toy shop as a present. बहुत ही poorly carved था वो. Now he was playing with the prince, and while playing the king got hurt when a tiny sliver pierced in his right hand. Sliver कहते हैं वो जो लकड़ी में छोटी छोटी सी फांस निकली हुई होती है, उसमें से एक फांस उसके हाथ में चुभ गई और वो उसके हाथ में जोर से चोट भी लग गई थी. किंग ने उसको इग्नोर किया बिकॉज उसने सोचा कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, एंड ही पुल्स द स्लीवर आउट. द प्रेडिक्शन कम्स ट्रू. जो उसने पुल कर लिया था स्लीवर को, उसमें उसके पस पड़ गया था, एंड दैट पस हैड इन्फेक्टेड द एंटायर आर्म. इट गॉट स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म. वो पूरा डेवलप हो गया था एक सोर में, वुंड में डेवलप हो गया था, एंड द pus got spread all over the arm, and 3 surgeons were summoned from Madras. Madras से 3 surgeons को बुलाया गया था, who performed the operation but failed to save the king's life. Hence the 100 tiger takes his final revenge upon the king tiger. Now, the dear children, the theme of the story. The story seems to revolve around the theme that destiny is all powerful and inevitable. डेस्टिनी मतलब जो आपके भाग्य में है वो होके ही रहेगा, इनएविटेबल है वो और पावरफुल भी है. एंड दैट वन इज गवर्न्ड बाय वंस स्टार्स एंड देयरफॉर ought to take one's astrologers seriously. तो हमको देखने में ऐसा लगता है कि ये इसका थीम है कि हमें अपने जो प्रेडिक्शंस हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए, अपने स्टार्स को सीरियसली लेना चाहिए और एस्ट्रोलॉजर्स को भी सीरियसली लेना चाहिए. ऐसा हमें लगता है क्योंकि डेस्टिनी इज ऑल पावरफुल. ये हमें शुरुआत में पता, मतलब ऐसा अपेरेंटली देखने को मिलता है. बट देन इट वुड बी एररनेस टू ड्रॉ दिस कंक्लूजन. ये गलत होगा अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. Appears to be more serious about the crime committed in thoughtless killing of tiger by royal rulers. So the author seems to be more serious. जो ऑथर उस ज्यादा हमें सीरियस लगा है थीम के बारे में वो है कि द क्राइम कमिटेड इन थॉटलेस किलिंग ऑफ टाइगर्स बाय रॉयल रूलर्स. रॉयल रूलर्स जो भी थे वो थॉटलेस किलिंग करते थे टाइगर की. उन्हें लगता था कि ये उनका शौक है, अच्छा है, वो अच्छा काम करते हैं, जो भी है व्हाटएवर. एंड उनके किल करने के साथ साथ क्या होता था, दे वर फॉलोड बाय कॉमनर्स एंड पोचर्स, एंड एज अ रिजल्ट द टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. क्योंकि वो मारते थे टाइगर को तो कॉमन पीपल भी अपने फन और मस्ती के लिए हंट करते थे, और पोचर्स तो अपने ग्रीडीनेस के लिए हंट करते थे टाइगर्स का. तो उनको किसी को कोई रोकता नहीं था. और फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, that the tiger population is on the verge of extinction. Thus, the story is about crime and punishment than destiny. So, in my opinion, it is more of a crime and destiny than crime and punishment than the destiny. It also suggests that one should not act rashly to prove or disprove astrological prediction. और ये चैप्टर का थीम एक ये भी है that revolves around the entire chapter कि किसी को भी कोई भी प्रेडिक्शन को, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए वियर्ड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, रैश बिहेवियर नहीं करना चाहिए. सो वी कैन से द ट्रीटमेंट ऑफ थीम इज लेस्ड विद ह्यूमर, आयरनी एंड क्विक बेस्ड नैरेटिव्स. ह्यूमर तो है ही, हमें कई जगह स्लाइट ह्यूमर मिला है. आयरनी उसी में है कि द किंग इज बीइंग किल्ड बाय द 100 टाइगर ऑल्दो इट वाज अ टॉय टाइगर, एंड इट इज अ क्विक बेस्ड नैरेटिव. ऑथर ने हमें जल्दी जल्दी जो इंसिडेंट्स थे वो सब नैरेटिव क्विक नरेशन में सुना दिए थे. नाउ लेट अस डिस्कस the justification of the title. It is the most appropriate title, dear children, because the story, matlab there are several reasons to say that. First of all, the king is crazy about tiger hunting. We all know that. To such an extent that he marries a princess whose father's kingdom has a sizable tiger population. तो उसको तो इस हद तक किलिंग का शौक था कि उसने शादी भी एक ऐसी प्रिंसेस से करी जिसके फादर के किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स थे. He kills 100 tiger just to fulfill his vow. Secondly, the king, with all his frenzy, anger, and ruthlessness, is a
is as ferocious as a tiger. So that's a very well explained, dear children, कि किंग की जो फ्रेंजी है, जो उसका पागलपन है मारने के लिए टाइगर को, और उसका जो एंगर है और उसकी जो रूथलेसनेस है, मतलब केयरलेसनेस, उसने बिना सोचे समझे टाइगर का हंट किया. तो ये जो सारी चीजें हैं, दे आर एज फेरोशियस एज ए टाइगर. तो ये जो बिहेवियर है फेरोशियसनेस का, ये टाइगर से रिजेंबल करता है. सो it is justified. Not only this, dear children, he dies of a sliver pricked received from the wooden toy tiger. Finally, the prediction that a tiger would cause the king's death also come true. So since the story revolves around a king and the hunted tiger, then he kills it. It could be better. It could not have been better title than the Tiger King. So it is just appropriate and justified. So thank you for listening, dear children. Kindly like, share, and subscribe my channel.